Hello students, welcome in accountancy video, and in this video we will discuss the next topic of not for profit organization. And in last video you have done the practical question of receipts and payment account, and today we will discuss new topic of NPO second final accounts, that is income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा कि इसका नेम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट मीन रिकॉर्ड ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो इट इज द सिमिलर ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. जो प्रॉफिट अर्न करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. सो दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो बिल्कुल सेम, ये सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह. टू कैलकुलेट करंट इनकम एंड करंट एक्सपेंसेस एंड फाइंड द एक्सेस एंड वाइस वर्सा, कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं या इनकम ज़्यादा है. इट्स क्लियर. नाउ income and expenditure account is prepared to record all the income and expenditure of a particular period. Here be remember, receipts and payment account is prepared record current all the time period transaction, current year, previous year and next year. But income and expenditure account record only particular, only current year income and expenditure. जो प्रीवियस ईयर की होंगी वो रिमूव कर देगा, नेक्स्ट ईयर की भी रिमूव कर देगा, ओनली रिकॉर्ड करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. एंड इट रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन एंड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर. यहाँ पर आइटम में भी डिफरेंस है. इन रिसीट्स एंड पेमेंट के अंदर हम कैपिटल नेचर की जो है रिसीट्स करें, इनकम पेमेंट करें, all natures items are recorded, but in income and expenditure account only revenue nature, because income gain and losses and expenses you learn about, these are the nominal account. तो ये revenue nature की items को ही record करता है. and it prepared at the end of year. if incomes are excess over expenditure it is called surplus. income ज़्यादा होंगी तो surplus, that means credit side excess होगा, and expenditure are excess, that means debit side excess होगा, over income is called deficit. so बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जो है वो सारे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किए जाते हैं. इस अकाउंट में भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डेबिट साइड एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड क्रेडिट साइड इनकम रिकॉर्ड की जाती है. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फर्स्ट फीचर इज नेचर ऑफ अकाउंट. इस अकाउंट की नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे हम. डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. Second is nature of items recorded in it. Students, be careful about it. It is the nature of account, and here items recording nature. Only revenue nature items are recorded, and capital nature की जो items हैं वो ignore कर दी जाती हैं. Capital nature items means sale and purchase of assets. Third is omission of opening and closing balance of cash. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करते. वी डोंट रिकॉर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस. नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली करंट ईयर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड इट इग्नोर प्रीवियस ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर and next year income and expenditures. Next is adjustments and non-cash items. Adjustment is outstanding expenses, prepaid income, accrued income, unearned income. These are called adjustment. These adjustments are recorded in this account. Receipts and payment account में इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनको रिकॉर्ड किया जाता है. एंड नॉन कैश आइटम्स डेप्रिसिएशन आर आल्सो रिकॉर्ड
in it. Next is the purpose. What is the purpose to prepare this income and expenditure account? To find the surplus or deficit. Surplus or deficit. Surplus means excess of debit over credit, that means called deficit, and excess of credit over debit is called surplus. So next topic is difference between receipts and payment account and income and expenditure account. जो ये नॉन कैश नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल स्टेटमेंट के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन them? So first difference is nature. Nature, that means receipts and payment account, it is the summary of cash book. कैश बुक की हेल्प से बनाया जाता है, समरी होती है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म होता है. एंड इट इज़ सेम एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये किसकी तरह सेम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह. सेकेंड है साइड्स. इसमें डेबिट साइड जो है वो रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. आपने लास्ट क्वेश्चन में चेक किया कि डेबिट साइड हमने रिसीट्स रिकॉर्ड की थी और क्रेडिट साइड पेमेंट रिकॉर्ड की थी. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिवर्स होता है, अपोजिट हो जाता है. डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है. तो नॉमिनल अकाउंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है, सेम उसी तरीके से इसके डेबिट साइड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होंगे एंड क्रेडिट साइड इनकम. थर्ड इज द टाइप ऑफ अकाउंट. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो अपने आप में एक एसेट अकाउंट का काम करता है, सो दैट इट इज़ अ रियल अकाउंट. एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. It has opening and closing balance of the cash and bank, that means cash at bank. Opening balance, that means cash in hand at the beginning of the year, and closing balance, that means cash balance, cash book का balance जो है at the end of the accounting year. And it has no opening balance. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, बट क्लोजिंग बैलेंस शोज आइदर डेफिसिट आइदर सरप्लस. डेफिसिट मीन्स डेबिट साइड एक्सेस हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड डेबिट, एंड इफ क्रेडिट साइड इज एक्सेस देन इट इज कॉल्ड सरप्लस. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड. In receipts and payment account, both capital and revenue nature items are recorded. वो रिक्योरिंग नेचर की हैं या नॉन रिक्योरिंग नेचर की हैं, बोथ आइटम्स आर रिकॉर्डेड. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट only revenue nature items are recorded. Next difference is period of income and expenditure. कौन से टाइम पीरियड की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है? इट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द टाइम पीरियड, दैट मीन्स करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर. ये कोई भी ईयर में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, इट मेंटेन ओनली रिसीट्स. कैश रिसीट्स एंड इट प्रिपेयर ओनली रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करता है. बेसिस का भी डिफरेंस है. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिस ऑन कैश बेसिस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस. नेक्स्ट इज द adjustments. Adjustments are not taken, it prepared on cash basis, and adjustments are taken because it is prepared on accrual basis. Next, balance sheet. Receipts and payment had no need to prepare record in balance sheet. जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस शीट से कोई लिंक नहीं होता, उसका कोई भी बैलेंस जो है वो कैश बुक कैश बैलेंस जो है उसमें रिकॉर्ड होता है, बाकी इससे बैलेंस शीट से लिंक नहीं है. एंड नीड टू अकम्पनी विद द बैलेंस शीट, इसकी जो है वो बैलेंस शीट से इस बनाने की नीड की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस. बैलेंस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर की रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड ऑफ बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद, उसमें कैपिटल फंड में ये
सरप्लस और डेफिसिट रिकॉर्ड किया जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस। सो वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रिपरेशन के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट सरप्लस, दैट मीन्स इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंड डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मेन पर्पस ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड डिफरेंस इज prepared by. Who prepare? Income and expenditure account is prepared by only for not for profit organization, and profit and loss account is prepared by trading concern or profit seeking organization. जो भी profit earning organizations होती हैं, they prepare profit and loss account. Third is the basis of preparation, prepared from receipts and payment account and other information. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए वी नीड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम अदर इंफॉर्मेशन, एंड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स एडजस्टमेंट। लास्ट वन इज द बैलेंस. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इट रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट. सेम सरप्लस जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, and deficit is expenditure over income, and it shows the profit and loss account represent the balance, net profit or net loss. I hope you understand this concept of not for profit organization. So write and learn these notes and solve the questions. Thank you. Have a nice day.